Dr. Dwivedi sir and Student Dean Welfare Dr. Dilip Sharma sir, please come on the stage. Once again, student, staff, parents, my coordinator, my HOD, principal, I hope you are all doing well and are ready to embark on a new academic journey. Today, I am here to welcome all of our newly students in this new academic year. As we start this journey, I want to remind everyone of the importance of the education. Education is not only about acquiring knowledge and skills, but it also prepares us for life. The lesson. First of all, I congratulate all the selected students. This institute was established in the year 1966 with 3 branches. 3 branches के साथ start हुआ था and declared autonomous in the year 1997 with 6 UG branches, 4 PG branches and 5 PhD courses. MOU with various research institutions, and this institute is proposed as a MPIT, Madhya Pradesh Institute of Technology, from the session 2025-26. IIT Indore developed 3 laboratories in this institution: laser laboratory, maker's space laboratory and astronomy lab. And very shortly MPIDC started their IT Park project in this campus. Thank you very much. का आशीर्वाद लेते हुए our respected Dr. Principal sir, our respected ex-dean student welfare, हमारे साथी मन संचालन कर रहे द्विवेदी जी, सामने सभी बैठे हुए विभागाध्यक्ष, हमारे सभी साथीगण, टीचर्स और विशेषकर जो हमारे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स एंड माय कोऑर्डिनेटर्स, वंस अगेन सभी का एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि सभी हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और द्विवेदी सर आपको जो भी जानकारी दे पाए, उसके साथ साथ एक उसी में कुछ एड ऑन और करके नॉट ब्रीफ बट शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूट देने की कोशिश करता हूँ, और उसी में साथ साथ हम हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे इसी जर्नी के साथ साथ, और साथ ही साथ एक लास्ट में एक वीडियो क्लिप होगी जिसमें आप हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे इंस्टीट्यूट और उसके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। जिसमें कि जो कंटेंट्स है जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर कॉलेज, नॉट माय कॉलेज। अब आज से अब आपका भी कॉलेज है तो आपका भी कॉलेज, और देन कॉलेज का विजन, मिशन और देन क्वालिटी पॉलिसी, फिर उसके बाद कैंपस टूर एंड फैसिलिटी इन पीपीटी, कैंपस टूर और फिजिकली इन पीपीटी, देन उसके बाद एकेडमिक फाउंडेशन, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर and then know your department, उसी में सभी डिपार्टमेंट के HODs and then last conclusion. So first institute details, जैसा कि सर ने पहले बताया कि now our institute name उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, उससे पहले इसी इंस्टीट्यूट का नाम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि 1966 में गवर्नमेंट ऑफ MP with a view to improve the technical education in the region of Malwa and in the country as a whole. Then उसके बाद this institute declared autonomous by the government of MP in the life supporting branch of engineering. That is the one and only branch which handles 5 principal components. जो पंच महाभूतों को जो बाकायदा केंद्र में रखता है वो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग। चिरी जल पावक गगन समीरा और पंच रचित है अधम शरीरा।
तो पंच महाभूतों से शरीर बना और ये पंच महाभूतों को अपनी विभिन्न केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इंजीनियरिंग ही समाहित करती है। The moment you get up in the morning, what you search for, either you are a mechanic engineer or computer professional, you immediately search for toothpaste, which is very much a chemical engineering product. So we have a wide range of products in all walks of life, starting from toothpaste, then cosmetics, your oils, fats, whatever it is, deodorant, whatever deo you apply, they are all chemical engineering products. Cement, as utilized by civil engineers, but the manufacturers have cement. Petroleum, diesel, petrol and all that, that is all chemical engineering product. Pharmaceuticals, daily suppose you are suffering from fever, then you सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल सर प्रोफेसर श्रीवास्तव, प्रोफेसर द्विवेदी सर, डीन स्टूडेंट करंट हमारे प्रोफेसर शर्मा सर, दिलीप शर्मा जी, प्रफुल्ल दुबे जी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं यहाँ पे, और साथ ही जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स यहाँ बैठे हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स, आई कैन सी दे आर स्टैंडिंग हियर, and all the budding engineers, first year students, I welcome you all on behalf of Mechanical Engineering Department in this college. जैसा कि इतिहास बताया सर ने, द्विवेदी सर ने काफ़ी विस्तार से बताया, काफ़ी डिटेल में बताया, मैं बहुत शॉर्ट बात करने वाला हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में, काफ़ी जिसे कहते हैं सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट हमारा रहा है। 1966 से अभी हमारे मुझे लगता है 66 से काफ़ी 50 साल हम ऑलरेडी 2016 में बना चुके हैं हमारे डिपार्टमेंट के। 71 में हमारा पहला बैच निकला था मैकेनिकल का। एंड यू कैन सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो आपके एलुमनाई हो जाएंगे, जब आप स्टूडेंट यहाँ से पास होंगे तो उनसे आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो सारे वर्ल्ड में वो अपना परचम लहरा रहे हैं। एंड आई होप द सेम फ्रॉम यू ऑल गाइस। सभी से मुझे उम्मीद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट आए हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट बाकी ब्रांचेस के हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा कॉलेज चूज करने के लिए आपने सबने पहल की और आप यहाँ पे आज बैठे हुए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मुझे जैसा कि बताया गया है कि अभी सीट्स के हिसाब से अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। कभी ऐसा भी दौर आया था कि हम लोग थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन अब हमने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमेशा से एवरग्रीन डिपार्टमेंट माना गया है। उसके कई कारण रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो हर फील्ड में गए हैं। मेरे पास अभी भी एलुमनाई कई आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे चल रही है इंजीनियरिंग। बोले नहीं सर इंजीनियरिंग तो नहीं, हमने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर लिया, हमने फाइनेंस सेक्टर में चले गए, हम डिफेंस में। तो सारी स्ट्रीम्स आप लोगों के लिए खुली है। विश्वास मानिए डिपार्टमेंट में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो भी आप चाहेंगे, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहेंगे, आप गेट का एग्जाम देंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे, आईटी से एमटेक करना चाहेंगे, आप कैट का एग्जाम देना चाहेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में आईआईएम्स में जाना चाहेंगे, मैनेजमेंट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार बैठे। हमारे पास बहुत अच्छी टीम फैकल्टी मेंबर्स हैं। आपने देखा होगा कि सारे हमारे जो फैकल्टीज हैं सभी एनआईटी या आईटी से पीएचडी करे हुए हैं, बहुत ही लर्नेड हैं, सबने अपना नाम पूरे वैलिडिटी रखा है। थोड़ी देर वैलिडिटी होती नहीं है, उसमें कुछ और दूसरे इवेंट भी हैं और साथ ही साथ कुछ जैसा कि सर ने आइडिया दिया है कि इनके जो डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन है, तो वो इंटरेक्शन हम प्लान करेंगे डिपार्टमेंटली कि वो जो 14 को है वो ऑलरेडी आपके डिपार्टमेंट के साथ पर्टिकुलर आपके डिपार्टमेंट का इंटरेक्शन होगा, आपके एचओडी और आपकी फैकल्टी और आपके जो रेल स्टाफ है जो इंटरनली जो आपका है वो 14 को मैं सर से अनुमति लेता हूँ कि सर वो अनुमति दे और ये 14 का है तो उसको फिर अपन विजिट करते हैं। साथ ही साथ आज भी एक कैंपस टूर है जो कि लंच के बाद, रेसेस के बाद आप सभी के पास टाइम टेबल होगा। मेरे ख्याल से उसमें हमने थोड़ा सा दिया हुआ है और ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, सर ने डिटेल मांगा है तो उसके लिए अपन 14 की सर की अनुमति से डिसाइड करते हैं। तो देन नाउ द नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स द साइंसेज, दैट इज द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और उसको हेड कर रहे हैं हमारे काफ़ी सीनियर डॉक्टर। Of the last many years, the chemistry is the study of elements of the universe, its properties, its occurrence, its reactions with other elements and its applications
to different branches of sciences and engineering. So in fact engineering is standing on the foundation stones of basic sciences. And chemistry is one of those basic sciences. एंशिएंट टाइम में भी केमिस्ट्री आपको पता होगा, सब में केमिस्ट्री में नई बात नहीं है। प्राचीन काल में भी केमिस्ट्री, वैदिक काल में भी केमिस्ट्री लोगों को मालूम थी। मेटल्स का यूज, मेटल के फर्स्ट का यूज, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में केमिस्ट्री का यूज हुआ करता। तो इट वॉज इनफैक्ट मिस्ट्री ऑफ कीमिया। कीमिया वर्ड केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ? कीमिया नाम आपने सुना होगा, कीमी। कीमी वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम केम, वर्ड केम, एंड केम वाज अ सिनोनिम ऑफ इजिप्ट इन एंशिएंट डेज। तो वेस्टर्न पीपल ऐसा बिलीव करते थे कि सारी जो नॉलेज है वो इजिप्ट से आई, और इजिप्ट का नाम था केम। Keum was a synonym of chemia. So the chemia was very mysterious. How it was originated. The chemia was very mysterious. It was given to different kind of patients for their treatments, etc. So ultimately the mystery of chemia was studied by some people, and those people were known as chemiagers. And this science was called later on chemistry. So this is all about the introduction of chemistry. Now here in engineering college, you will be reading some applied form of chemistry. The chemistry which is useful to engineers. When you will come to our department, you will be reading subjects like water analysis and treatment, which is important for you. सभी ने अपनी ब्रांचेस के बारे में आपको बताया। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिना मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच का क्या अस्तित्व रह पाएगा, ये प्रश्न आप स्वयं से पूछ सकते हैं। तो आपने जो एडमिशन लिया है, तो आपका जो बेस रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मतलब बेसिक साइंस के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं कि आप इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको आप कर सकते हैं। और इस वजह से आज आपने यहाँ एडमिशन लिया है। निश्चित रूप से ये संस्था एक बहुत ही पुरानी संस्था है। इसमें जो मैथमेटिक्स के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि डिपार्टमेंट में सभी सीनियर फैकल्टी हैं। जो फीडबैक आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद में जो मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आपकी छूट जाती है और केवल रीडिंग पर आप फोकस करते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि इंजीनियरिंग में बिना मैथमेटिक्स के कोई कल्पना नहीं कर सकते। हर जगह आपको मैथमेटिक्स लगेगी, उसको आपको एंजॉय करना है, आपको उसको भारूप में नहीं लेना है। और इसमें केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपने 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पर है, पर उस फॉर्म की यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरह का कोई हर्डल आपको नहीं आएगा। तो इसमें दो तीन चीजें आपको मेंटेन करना है। एक तो आप डिसिप्लिन में यहाँ पर रहेंगे, रेगुलर आपको क्लास अपना जो है अटेंड करना है, और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको अपनी ईमानदारी से करना है। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा, राइट। तो इसमें जो आपको प्रॉब्लम्स यदि आती हैं तो आप टाइम टू टाइम जो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, और इसको आपको किसी भी तरह से एक हर्डल के रूप में आपको नहीं लेना है। तो अभी तक का जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा है इंजीनियर्स का, तो वो एडमिशन तो लेते हैं। On behalf of Physics Department, Physics Department is one of the founding department of the institute since the establishment of institute in 1966. The physics lab houses modern and advanced experiment related to theory and devoted to clear the concept of modern physics. The department is committed to excellence in teaching, research and practical application of physics. Our team of 3 dedicated faculty members, myself Dr. Rakesh Kumar Rai,
Dr. Prerna Sharma and Dr. Vijay Kumar Hinge is sitting here. He is one of the coordinator of this program. The department has research facility in the field of plasma physics headed by Dr. Prerna Sharma, luminescence laboratory which is headed by myself, and X-ray spectroscopy lab which is headed by Dr. Vijay Kumar Hinge. Physics department is well known for punctuality, strict discipline and quality teaching. So I must say that the word physics, the first letter denotes to the punctuality. Okay? So I wish you all for your bright future in this institute, and once again I welcome you all in this prestigious institute. Thank you. Extensive library, career student, full-fledged language, laboratory, and enhanced student personality skill, P2, first and third, then excellent faculty, of course, all are from PG, PhD, from reputed IITs, NIT, infrastructure facility, Center of Excellence in Environment, alumni since 1971, placed in almost all the leading public private sector, award, quality and skill student, Yeswai Samde, smart classroom, member of societies like IIT, some other also, sport, open gymnasium, college fest, college class, and IIT Indore developed laboratory. And then the last, thank you. This is the overall in this lecture to know your institute. Then इसके बाद एक जो क्लिप है उसके जरिए और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट क्या है, और देन इसके बाद फिर ये एंड हो जाएगा। इससे First and foremost, I would like to express sincere appreciation to our respected principal, Dr. J.K. Srivastava sir. Your leadership and vision have been the driving force behind the success and growth of our institution. We are truly grateful for your presence and dedication. Also, I would like to extend heartfelt gratitude to our respected ex-Dean Student Welfare, Dr. A.K. Dwivedi sir, for inspiring words and encouragement. Your contributions have not only provided us with valuable knowledge, but also inspired us to pursue excellence. Thank you, sir. I am also BTech first year in charge. So you should know who am I and what is my qualification, so that I can deliver my lecture. Second is importance and purpose of student induction program. हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम अभी 14 डेज यहाँ पर रहेंगे, तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये इंडक्शन प्रोग्राम क्यों कराया जा रहा है, व्हाई द इंडक्शन प्रोग्राम इज कंडक्टेड एंड व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस. Know your institute. I skip this part because Dr. Dilip Sharma and sir already given in detail. Academic facility available in the institute. Also it is discussed by Dilip Sharma sir and different HODs. So I skip. So first let me introduce myself, Dr. Rakesh Kumar Rai. I am professor and head of the physics department. I joined this institute in March 1999 as a lecturer. So I spent almost 20 होने से यूं गुजारा नहीं होता और हर आंसू दर्द का सहारा नहीं होता. इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं है. जो आपके कंट्रोल में था वो कर लिया. आप अच्छा पढ़ते, अच्छा स्कोर लाते, आप IIT चले जाते, आप अच्छा ब्रांच ले लेते. अब वो तो नहीं हो पाया, अब यहाँ आ गए हैं, तो उसी में संतुष्ट रहिए. ठीक है, तो जो है वो सीने से लगा लो, जो है वो सीने से लगा लो. यूं गम को सिक्कों की तरह उछाला नहीं करते. तो उसे उछालने मत किया कि यार मेरे को कंप्यूटर नहीं मिला, मेरे को मैकेनिकल मिल गया, मेरे को केमिकल मिल गया. हर ब्रांच का अपना एक अलग महत्व है, हर उसमें अच्छा आप कर सकते हैं. इसलिए डीमोटिवेट मत होइए. यही सबसे बड़ा रीजन है दुख का कारण यही है. 4 साल के लिए छोड़ देंगे तो आप अच्छा करेंगे हर ब्रांच में. लाइफ इन हॉस्टल.
For some students, the start of hostel life without choose parental support, without close parental supervision at the same time, further worsen it with also a poor daily routine. अब पहली बार घर से निकले हैं, सुबह सोच उठे नहीं कि बेड की मम्मी ला के दे दी, केवल अरे बेटा उठ, चाय आ गया है, उठ जा, रजाई में दुबक गया लड़का, अभी रुको, अभी ठंड लग रही है। अब हॉस्टल में जब आ गए सब आपको करना है, हर चीज में आपको लगेगा, क्योंकि आपका एक यदि सेट डेली रूटीन नहीं है तो क्या होता जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है और बहुत दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इधर उधर कहीं भी रोम होता है। अब जब आप घर में रहते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए न्यूक्लियस जैसा होता है, हर चीज में नजर रखते हैं कि कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, टाइम पे पढ़ रहा है कि टाइम पे नहीं पढ़ रहा है। अब जैसे ही घर से निकले यू बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, घर वालों का कोई वही नहीं है, फोन है, बोले कहाँ है, पापा पढ़ रहा हूँ मैं इधर, अब मॉल में घूम रहा है लड़का। तो डेली रूटीन यदि सेट नहीं है तो भी आपको परेशानी बहुत है। न्यू स्टूडेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट विथ डाइवर्स थॉट्स, बैकग्राउंड एंड प्रिपरेशंस। डिफरेंट पार्ट से, अलग अलग जगह से आए हैं सब लोग, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, कोई कहीं से आया, उनका कल्चर पूरा अलग है और यहाँ सब मिलजुल के रहना है, हॉस्टल में रहना है, क्लास में रहना है। आपके टीचर भी बहुत अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनके साथ आपको मिलजुल के रहना। तो इसके इंडक्शन प्रोग्राम में जो 14 दिन होता है उसमें आप बहुत अच्छे से मिक्सअप हो सकते हैं। They came into a new unfamiliar environment and many of them have little knowledge of the institute. आप जो भी वेबसाइट विश्वस्तरीय हॉल में विराजमान समस्त विभागाध्यक्ष महोदय और इस बीटेक फर्स्ट ईयर के इंडक्शन प्रोग्राम की आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर राय, डॉक्टर हिंगे, डॉक्टर निगोर और यंग गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स जिसमें रैनिशा, तपस्या और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी के नाम डॉक्टर मंजूषा, विदुषी एंड ऑल कल्चर जो भी इसमें समाहित है, उन सब के सब प्रयासों से आज ये बीटेक फर्स्ट ईयर का इंडक्शन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आपको विदित है, इंडक्शन मीन्स दिस इज सम काइंड ऑफ रेडीनेस प्रोग्राम। आप विभिन्न परिवेशों से आए हैं, अलग अलग माध्यमों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, कुछ लोग गाँव से आए हैं, सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि है और सबको एक ही धरातल पर यहाँ पर सबको प्रतिष्ठित करना है। इस वजह से इंडक्शन प्रोग्राम बहुत जरूरी है ताकि आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर बहुत ही सहज महसूस कर सकें, अपने आत्मविश्वास में वृद्धि और उन्नयन कर सकें और जो भी आपकी योग्यता है उसका समुचित सदुपयोग कर सकें। इस इंडक्शन प्रोग्राम में आपको किसी तरह की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही केमिकल इंजीनियरिंग, ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आपको नॉन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ज़्यादा बताए जाएंगे। जैसा कि जो टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया उससे सर्वविदित भी है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे। आप लोगों ने वो टाइम टेबल देखा है, जिससे आपका एक समग्र व्यक्तित्व विकास हो सके और इसमें गुरु की महत्ता सर्वोत्तम है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा में कितने सारे श्लोक, कितनी सारी वंदनाएं, कितनी सारी प्रार्थनाएं। तो आप लोग इस इंडक्शन प्रोग्राम के तहत गुरु की महिमा को भी जानते हैं। यहाँ कोई आपको एकदम से आध्यात्मिक गुरु नहीं हम लोग हैं, हम लोग शैक्षणिक गुरु हैं और जो सभी विराजमान शैक्षणिक गुरु हैं उनको बहुत ही विनम्र भाव से आप नमन करें
हमेशा उनको विश करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, निर्देशों का स्पष्ट पालन करें, तभी आपकी सही उन्नति होगी। क्लियर है? तो ये गुरु तत्व से इस बात का आरंभ हुआ है। और भी गुरु का मतलब ही होता है, गु माने संस्कृत से इसका उद्धरण हुआ है। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है। तो हमारे सभी शैक्षणिक गुरु, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे यंग टीचर हो या कोई भी सीनियर फैकल्टी, सभी गुरु हैं। वो आपके तमस का शमन करेंगे, आपके अंदर जो विराजमान अंधकार है, ज्ञान है, उसको दूर करेंगे और आपको इंजीनियरिंग के प्रकाश तक ले जाएंगे। ये पूरी परंपरा है, गुरु एक परंपरा है। आप पूर्ण शिष्य बने। जब आप पूर्ण शिष्य बन जाएंगे तो धीरे धीरे कालांतर में और बहुत सालों बाद आप स्वयं गुरु भी बन जाएंगे। तो पूर्ण शिष्यत्व की स्वीकार्यता बहुत आवश्यक है। तो इस इंडक्शन कार्यक्रम में आपको पूर्ण शिष्य बनना है। और शिष्य वही है जो गुरु की बात को बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इंद्रियों को संयमित करके गुरु की वाणी को सुने तो आपको निश्चित तौर पर ज्ञान होगा। चिरेणादि गच्छति, बहुत जल्दी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आप ज्ञान के प्रकाश को महसूस कर पाएंगे। इस तरह से गुरु की परंपरा है, गुरु की महिमा है, गुरु की महत्ता है। और इसी बात को मैं बार बार इसीलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि जिसने इस बात को आत्मसात कर लिया वो सही। संचालन करने वाले श्री दुबे जी, सामने बैठे हुए विभिन्न विभागों के उपाध्यक्ष और फैकल्टी मेंबर्स, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं और नए जो आए स्टूडेंट्स हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ फैकल्टी की थोड़ी शॉर्टेज है, बट वी हैव टोटल 9 डेडिकेटेड फैकल्टीज इंक्लूडिंग अवर गेस्ट फैकल्टीज। और कभी भी ये फील नहीं होता है कि हमारे यहाँ फैकल्टी की शॉर्टेज है। जितनी भी फैकल्टी है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। And for practical knowledge, we have 5 labs in which computer lab, the big one and oldest one, microprocessor lab, IoT lab, robotics lab, and recently we are preparing to have a big lab where we can accommodate approximately 100 students or 100 computer sets. So feel proud to be the part of the engineering, computer engineering especially. So, Department of Electronics. It is established in Department of Electronics was established in 1985 with intake of 30 seats initially. Now the intake has been increased up to 75. So this department has 9 regular faculties shown here. All are well experienced. Each one has almost above 15 years of experience, teaching experience. Dr. Sharma is also belongs to electronics department. We are also having guest faculties, 5 guest faculties to cater the need. And in this way we fulfill the student faculty ratio. We have good academic environment. Our faculties, Professor Dilip Sharma has published recently one book and also granted patent recently. So there is good and you definitely be benefited from his and all these professors. So department has 7 well equipped lab also, named
various labs are given here also. One of them is communication system lab, TV lab, then VLSI lab, computing system, computer center, and all these labs are available. So where you can get the practical knowledge there. And apart from BTech, electronics department also offer PG course and PhD programs also we are running. At present, 2 or 3 students have been registered under the supervision of various teachers. In last session, from our department, above 40 students got placement through TPO से। स्वागत है। और जैसा कि सर ने बताया कि ये ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 1966 में एट द इंसेप्शन ऑफ दिस कॉलेज एस्टेब्लिश हुए थे। और जैसा कि द्विवेदी सर ने भी बोला कि HPTI गए थे पर गए थे सिविल इंजीनियरिंग लेने, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग कोर्स वो है जिसका बहुत क्रेज था। स्टार्टिंग में हर व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ही जाना चाहता था, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम अपॉर्चुनिटी सिविल में कम हुई और इनटेक कम हो गया। और मैं कहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस। कोई भी आप फैक्ट्री लगाओ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का काम करो, चाहे आप कुछ भी, पहला व्यक्ति होगा सिविल इंजीनियर जो वहाँ पे काम करेगा। और यदि सिविल इंजीनियर को काम नहीं मिल रहा है तो आप मान लीजिए उस देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। एंड दिस इज द रियलिटी कि 90 से या 85 से 2005 तक इस देश का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। डेवलपमेंट हुआ मतलब मिनिमल डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे जब फिर पेस पकड़ी तो फिर बीच में सिविल इंजीनियरिंग का फिर एक फेज आया जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी। बट विद द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज देयर इज टू मच क्राउड। और मैं तो कहूँगा सिविल इंजीनियरिंग के जिन बच्चों ने सिविल ब्रांच ली है विद दिस ऑल एडवर्सिटी, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मेरा रिलेशन आप लोगों से 2 तरीके का है। सबसे पहला रिलेशन तो यह है कि मैं आपका सीनियर हूँ, इसी कॉलेज का पास आउट हूँ, इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ और यहीं पर सर्विस भी करता हूँ। दूसरा विभागाध्यक्ष हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपका कुछ जानकारी दी है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सारे स्टाफ मेंबर्स वेल एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस है और 5 अन्य फैकल्टीज भी हैं। मैं ये कहूँगा आपको कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सारी ब्रांचेस के HODs ने अपने अपनी ब्रांच के बारे में सब कुछ बताया। मैं कहूँगा कि कोई भी ब्रांच एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। जिस तरीके से आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, उस बॉडी का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से इंजीनियरिंग की हर एक ब्रांच इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इम्पोर्टेंस जानना है 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस पता लग जाएगा आपको कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है तो इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है तो इलेक्ट्रिकल है। अगर इलेक्ट्रिकल नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं है। इसलिए कोई भी ब्रांच अच्छी या बुरी नहीं होती। ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सभी इंजीनियरिंग का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। सभी इंजीनियरिंग में अपना अपना अलग अलग फील्ड है, आपको आपकी चॉइस है। मेरा बता रहा हूँ, सबसे पहले जब इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था 1983 में, 3rd ईयर में ब्रांचिंग होती थी। मैं सब इलेक्ट्रिकल लेकर गया कि मेरे को इलेक्ट्रिकल लेना है। मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्हें, बेटा इलेक्ट्रिकल तो बहुत कठिन पड़ेगी, तुमको सिविल मिल सकती है, सिविल ले लो। नहीं, मेरे को तो इलेक्ट्रिकल ही लेना है, पता नहीं। और मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करके बहुत अच्छा किया मैंने। आज भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब इमेजिनेशन हम अपने माइंड पर जोर देते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आपके माइंड की शार्पनेस बढ़ती है। उसके बाद जब आप फील्ड में जाओगे तो बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर रहोगे।
तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच अच्छी या बुरी नहीं होती। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है। मेरे यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज है